Hello everyone, good afternoon. I am dietitian Deepa Kansal as a dietary head Yashoda Hospital, Nehru Nagar in Ghaziabad. I hope all you are good and fine. Today, as we know, this week is National Nutritional Week, 1st September to 7th September. So I am here for giving you some healthy nutritional tips. Basically, food and nutrition are mandatory for physical and mental health. If you need an active life with growth and development, so balanced diet is must. What is balanced diet? Balanced diet is where is 7 component of food is there. Food and nutrition is a good for glowing skin and maintain your balanced body. I am talking about food balance and 7 component of food and nutrition. First of all, I introduce you 7 component. First one is carbs, carbohydrate. Second one is protein. Third one is pulses and legume. Fourth one is fruits and vegetables, and fifth one is fat, oil and sugar. So first of all, you should know what is accurate amount you should take in your diet, which develop your mind and body. First of all, I am talking about carbs. Eat a variety of carbs. You should take wheat, grain, bread and multigrain chapati in place of maida and maida product. 3 or more exchange, 3 and maximum 6 exchange you can take in your meal in a whole day. Second one is protein. You should know what is accurate and what is good protein in your health. For example, you can take boiled egg, paneer, soya milk, cow milk, pulses, sprouts, basically washed dal. It's a good for health. And in a chicken form, you can take roasted and boiled form chicken, and soups is a very good for muscles and your build up body. Third one is vegetables and fruit. Which vegetable is good? Basically non-starchy vegetable is good for your health, like green vegetable and leaf green vegetable like lauki, torei, tinda, spinach, fenugreek, coriander, etc. and capsicum colorful, green and red. If I am talking about fruits, fruits is very good for your growth and develop your energy system. Which fruit is good? Mostly all over fruit is good, like apple, papaya, guava, pear and watermelon, muskmelon. But citrus fruits is very good for health because these are low fat and high energetic. Now I am talking about dairy product. Dairy product basically you can use low fat milk like cow milk, soya milk and without fat milk and milk product and dairy product also. Basically now third one is nuts. So mostly nuts is good for your health, but you should know what form is good for your health, like almond, anjeer and walnut, raisin. These are good for your health but should be formed in soaked form, because soaked form is a fat free and glowing your skin and develop your immunity system. So if we are talking about national nutritional food habit, so basically हम देखें तो बच्चों के अंदर ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि हम बच्चों को हेल्दी फूड हैबिट कैसे जनरेट करें. मदर्स मोस्ट ऑफ ये फेस करती हैं कि बच्चे चिल्ड्रंस आर मोस्ट प्रेफरेंसेस जंक एंड फास्ट फूड.
These are not good for their growth. So we can prepare healthy and lots of variety with taste. For example, we should avoid maida and maida product and include in their life wheat and wheat product. I will give you some example. Uh, uh, आप लोगों को बेसिकली मदर्स को बच्चों के डेली शेड्यूल में, जैसे कि बच्चे मैगी बहुत पसंद करते हैं, तो हम लोगों को मैगी की मैदा की जो बनी होती है मैगी, उसकी जगह पे हम लोगों को आटा मैगी यूज़ करना चाहिए विथ लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक यू कैन ऐड कोरिएंडर, अनियन, टमाटो एंड लिटिल बिट पनीर एंड बीटरूट ऑल्सो. These are fully nutrient and if one meal of complete serving. If we are preparing dough, so you can add cow milk in replace of water. You can add washed dal like moong dal replacement of water. These are highly protein content of dough. ये बच्चे को टेस्टी लगेगा, उसकी वैरायटी चेंज होगी और वो आगे होके आपसे आगे होके मांगेगा. बेसिकली मैं यहाँ यशोदा हॉस्पिटल में काम करती हूँ और मैं डेली यहाँ पे बच्चों के साथ ये चैलेंज बहुत फेस करती हूँ. बच्चों को खिचड़ी, दाल, चपाती, पराठा ये लाइक नहीं होता, बट अगर वो मैगी ज़िद करते हैं तो हम उनके लिए आटा मैगी प्रिपेयर कराते हैं. उसके अंदर उनको पनीर की चॉपिंग, वेजिटेबल्स, कलरफुल, सो वो अपीयरेंस दिखने में बहुत अच्छा होता है और बच्चा यहाँ से जाने के बाद घर पे भी डिमांड करता है जैसा दीदी ने खिलाया था मम्मी वैसा बनाओ. सो इससे मेरा कहने का मीनिंग पर्पस ये सॉल्व होता है कि मोस्ट ऑफ फूड हैबिट इज स्टेबलाइज्ड इन चाइल्डहुड पीरियड. सो हमें अपने बच्चों को इस टाइप का क्रिएशन देना चाहिए कि बच्चों को हेल्दी फूड और फास्ट फूड और जंक फूड में डेफिनेशन या डिफ्रेंशिएट पता हो. अगर बच्चे ही चाइल्डहुड से हेल्दी फूड की तरफ एम्फेसाइज होंगे तो हमारी आगे का जो उनका जो साइकिल बढ़ेगा, ग्रोथ पीरियड बढ़ेगा, तो हमें उनके लिए व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ नॉट गुड, व्हाट इज़ हेल्दी, व्हाट इज़ अनहेल्दी, दे ऑल नो व्हाट इज़ द ट्रुथ फॉर हेल्दी फूड. यही हमारा इस ईयर 2021 का एजेंडा है, नेशनल न्यूट्रिशनल फूड हैबिट. सो अगर हमारे घर का कल्चर या हमारे घर का डेली लाइफ स्टाइल फूड हैबिट्स हेल्दी होंगी तो हम अपने बच्चों को और अपने इन्वायरमेंट को भी हेल्दी कर सकते हैं, जिससे हम मोस्ट ऑफ डिजीज़ को अपने से दूर कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकते हैं और हम मेडिसिन जो डिजीज़ आजकल बहुत ज़्यादा प्रिवेंट हो रही हैं लाइक डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, लीवर एंड most of PCOD, these are only depend of unhealthy food and fast food. So we can control with this diet. So बच्चों को अगर हम बच्चे पिज़्ज़ा की ज़िद कर रहे हैं तो हम उनको घर पे स्टफ रोटी पिज़्ज़ा भी दे सकते हैं प्रिपेयर करके, जिसके अंदर वैरायटी होगी, बच्चे को टेस्टी लगेगा और बच्चे फिर मैदा प्रोडक्ट से हल्के हेल्दी फूड की तरफ डेवलप होंगे. सो एजेंडा इज़ कि अगर हम बच्चों के अंदर ही फूड हैबिट को चेंज करें तो बच्चे ही आगे होके ग्रोथ में बढ़ के वो आगे जनरेशन में काउंट होंगे. सो आगे की जनरेशन ऑटोमेटिकली हेल्दी फूड की तरफ डेवलप होगी. सो अगर हम बच्चों को ही हेल्दी फूड की डेफिनेशन अच्छे से समझा देते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी खुद की लाइफ स्टाइल बहुत हेल्दी बने. अगर हम खुद हेल्दी अपनी लाइफ रखेंगे, अपना शेड्यूल रखेंगे, तो हम अपने बच्चे को भी वही देंगे और बच्चा खुद उसको अडेप्ट करेगा अपनी लाइफ के थ्रू. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सुबह खुद उठ के 2-3 गिलास या जब अगर हम खुद डेली की लाइफ में एम्प्टी स्टमक फ्रेश वाटर पी रहे हैं, तो वो बच्चा जब डेली एक चीज़ देखेगा कि मम्मा या घर में कोई भी बड़ा, दादी, दादा कोई भी एक एक्टिविटी कर रहा है तो बच्चा उसी को अडॉप्ट करता है कि हाँ मम्मा ऐसा कर रही हैं तो दिस इज़ गुड. तो उसके दिमाग में हमें उस चीज़ को स्टडी कराने का मतलब नहीं है, वो उसको खुद अंदर फीड हो जाएगा और वो लॉन्ग टर्म फीडिंग होगी. उसको हम कभी भी अवॉइड या हम उसको निकाल नहीं सकते, वो अपनी लाइफ में और अपने आने वाली जनरेशन को भी वही देगा. सो हम अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा बनाएं जो हमारे बच्चों को एक अच्छा लेसन दे. सो अब मैं आपको एक जनरलाइज
एक पैटर्न बताऊंगी जो डेली लाइफस्टाइल में एक एडल्ट के लिए, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में, जो हमारे आगे के लिए और हमारी ओल्ड एज सब के लिए एक अच्छा लेसन क्रिएट करेगी। अगर हम सुबह उठते हैं और हमें सिर्फ एक हेल्दी लाइफ चाहिए तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम सुबह उठ के गुनगुना पानी पिएं। आप नॉर्मल, आपको अपने रूटीन में इस टाइम पे, जैसे कि अभी कोविड भी गया है, बहुत ज़्यादा सर्कमस्टांसेस आए हैं, सो फूड का चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें फूड को हेल्दी और अपनी डाइट को इतना हेल्दी रखना चाहिए जो हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करे और हमारा इम्यून सिस्टम बहुत बेटर हो सके, जो अगर हमें कल को कोई बीमारी है तो हम उससे अपने इम्यून सिस्टम के बेस पे लड़ सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम हेल्दी नरिशमेंट फूड अपनी लाइफ स्टाइल में लें। आपको डेली लाइफ स्टाइल में अगर पॉसिबल है एम्प्टी स्टमक 3-4 ग्लासेस मटके का फ्रेश वाटर पीजिए। उससे क्या होगा, आप 3 से 4 बार यूरिन जाएंगे और आपका टॉक्सिन रिलीज होगा बॉडी से। जो भी रात का, जो आपने लास्ट डे का जितना भी आपने फैटी ऑयली खाया है, यूरिन के थ्रू आपके टॉक्सिन रिलीज होंगे बॉडी से। आफ्टर दैट अगर आपका पॉसिबल है तो आप लास्ट नाइट को 7 to 6 आलमंड, वॉलनट, 1 or 2 वॉलनट, अंजीर आप सोक्ड करके रख दीजिए। अगले दिन आप उसको छिलके को उतारिए और वेल च्यू करके उसको लीजिए। ये these are less than fat but these are help in your muscles protein and your immune system. After that you should take a deep breath and go with walk. Walk should like a fast walk, not running but fast walk. आपकी जब स्वेटिंग रिलीज होगी तो आपकी बॉडी से जो भी फैट सेल्स है वो यू स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकलेंगे और आपको फ्रेश एयर आपके रेस्पिरेशन को, आपके डाइजेशन को और आपको एक एनर्जी फील कराएगा, जिससे आपका पूरा दिन बहुत अच्छा और एनर्जेटिक इंस्पायर होके जाएगा। आप जब वॉक करके आते हैं तो उसके बाद फिर आपको अपनी लाइफ स्टाइल में अगर आप चाय लेते हैं तो आपको लो फैट मिल्क या विदाउट फैट, जिसे हम डबल टोन कह देते हैं, उसकी चाय प्रीफर कीजिए। साथ में हाई फाइबर बिस्किट, जैसे कि कोई भी डाइजेस्टिव, न्यूट्री चॉइस, मैरी, कोई भी बिस्किट आप लीजिए, दीज आर गुड। अगर आप दूध की चाय नहीं लेते हैं तो आप कोई भी हर्बल टी ले सकते हैं, ऑर्गेनिक टी ले सकते हैं, वो और भी अच्छा होता है। आपको ब्रेकफास्ट कैसा लेना चाहिए? ब्रेकफास्ट में कार्ब्स और प्रोटीन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील फॉर स्टार्ट अप द डे। अगर हमारा ब्रेकफास्ट हेल्दी होगा तो हम अपने पूरे दिन, जो हमारे अपने काम है, जो हमारे अपने शेड्यूल है, जिसमें हमारी एनर्जी लॉस हो रही है, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, जिसके लिए हमारा ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी होना चाहिए। आपको अपनी लाइफ स्टाइल में, जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया कि हम लोगों को जो ब्रेड का एक्सचेंज है वो ब्राउन ब्रेड या व्हीट ब्रेड हाई फाइबर जो होती है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। रोस्टेड फॉर्म में उस पर आप न्यूट्रिला, लो कोलेस्ट्रॉल, कोई भी बटर यूज़ कर सकते हैं। साथ में प्रोटीन का कंपोनेंट, जैसे कि यू कैन ऐड स्प्राउट्स, यू कैन ऐड बॉइल्ड एग, यू कैन ऐड पनीर, यू कैन ऐड न्यूट्रिला, एनीवन विच यू लाइक यू कैन टेक, बट लॉट्स ऑफ वैरायटी इन स्प्राउट्स। लाइक स्प्राउट्स अगर हम एक बाउल में हमारा 30 ग्राम आता है तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम उसमें 30 ग्राम प्रोटीन के साथ, स्प्राउट्स के साथ, हम उसमें और ज़्यादा 100 ग्राम से ज़्यादा हम उसमें वेजिटेबल्स यूज़ करें। लाइक अनियन हो गया, आपका टमाटो हो गया, आपका गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर हो गया, ग्रीन चिली हो गया, लाइम हो गया, ब्लैक पेपर, सॉल्ट। ये आपके टेस्ट को एम्फेसाइज करेंगे, आपका टेस्ट इंक्रीज करेंगे और आपकी बॉडी को एनर्जी देंगे, क्योंकि जितनी भी हमारी वेजिटेबल्स होती हैं वो हाई कंटेंट्स ऑफ फ्रूट, वाटर एंड हाई कंटेंट ऑफ एनर्जी होती है। हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो हमें नाश्ते में काऊ मिल्क या सोया मिल्क कोई भी 1 कप लेना चाहिए। चाय का यूज़ हमें ब्रेकफास्ट के साथ नहीं करना चाहिए। अगर आप हर्बल टी ले रहे हैं तो ऑल्सो गुड, आप रिप्लेसमेंट ऑफ मिल्क आप कोई भी हर्बल या ऑर्गेनिक टी ले सकते हैं, बट हमें मिल्क टी ब्रेकफास्ट में अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज चाय के अंदर टैनिन होता है जो कि हमारे प्रोटीन के बाउंड्स को ब्रेक डाउन करता है। सो हमें प्रोटीन के साथ टैनिन या कॉफ़ीन जो कि कॉफ़ी में होता है, हमें उसको जनरली अवॉइड करना चाहिए। हमारा नाश्ता है
वो 8 to 9 के बीच में हो जाना चाहिए, बिकॉज एक मील के जो टाइमिंग होते हैं वो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल पे बहुत वैल्यू करते हैं। हमारा सुबह का उठना 6 o'clock या 5:30 इट्स अ गुड फॉर हेल्थ। आफ्टर दैट आपके ब्रेकफास्ट का टाइमिंग 8 to 9। आपकी जो डेली साइकिल होती है वो आपके पूरे दिन के शेड्यूल पर मैटर करती है, और उसी से आपकी हर एक एक्टिविटी, आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, आपका बॉडी शेपअप, सारा आपका काम, प्रेजेंस ऑफ माइंड, हर चीज़ डिपेंड करता है। अब ब्रेकफास्ट करने के 2 से 3 घंटे के बाद हम लोगों को, जैसे कि आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर लंच, जिसे हम मिड स्नैक्स या मिड लंच कहते हैं, आप उसमें फ्रूट्स ले सकते हैं। इफ़ यू आर टेकिंग सिट्रस फ्रूट, सो यू कैन ऐड 3 or 4 एक्सचेंज, लाइक ऑरेंज हो गया आपका, मौसमी हो गए आपके, सिट्रस फ्रूट हाई एनर्जेटिक एंड लो फैट। इफ़ यू आर टेकिंग एप्पल और बनाना, वाटरमेलन, मुस्क मेलन, so you can take 1 exchange in a day. Now I am talking about lunch. Lunch complete diet का होना चाहिए, like cereal component, pulses component, milk यानी कि dairy component, salad and carbs most important. लंच में कार्ब्स का होना और ब्रेकफास्ट में कार्ब्स का होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी डाइट से कार्ब्स को मेंटेन करना चाहिए, बट रिड्यूस नहीं करना चाहिए। ओके, सो हमें कार्ब्स का एक एक्सचेंज यानी कि मल्टीग्रेन चपाती 1, जो कि हमारी आइडियली 20 ग्राम की होती है। ग्रीन वेजिटेबल लाइक आप कोई भी फेनुग्रीक ले सकते हैं, या आप स्पिनिच ले सकते हैं जो कि विंटर्स की होती हैं, बट सीजनल चल रहे हैं, जैसे लौकी, तोरई, टिंडा, करेले बहुत अच्छे होते हैं, गुड फॉर आयरन। आपका बटर मिल्क का रोल बहुत ज़्यादा लंच के लिए मैटर करता है, बिकॉज डेयरी प्रोडक्ट होती है। कर्ड हमारा बेसिकली जो बनता है वो लैक्टोबैसिलस से बनता है, तो हमारा कर्ड का काम क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट कराना। सो हम लोगों को कर्ड का सबसे अच्छा रोल ब्रेकफास्ट या लंच में होता है। यू कैन ऐड लॉट्स ऑफ सैलड लाइक चुकंदर, बीटरूट। एवरी लंच हाफ चुकंदर, एक नॉर्मल इंसान को हाफ चुकंदर का कंजप्शन सैलड फॉर्म में लेना ही चाहिए। हमारे हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड सेल्स, हमारी बॉडी की स्किन ग्लोइंग, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा होता है, ग्लोइंग स्किन, तो जो वेजिटेबल्स होती हैं वो स्किन ग्लो में भी बहुत अच्छा रोल करती हैं। सो एक कंप्लीट हेल्दी लंच आपके आने वाले 4-5 आवर्स के लिए सफिशिएंट होता है। सो आपका हेल्दी लंच ही आपके आगे तक का, इवनिंग तक का, आपके वर्क को, आपके एनर्जी लेवल को डिफाइन करता है। आपकी एनर्जी बनी रहती है, आपको काम करने के लिए आप फुली तरीके से एनर्जेटिक होते हो, जो आपको हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। अगर हम शाम की बात करें, जो हम स्नैक्स कहते हैं, उसमें आप रोस्टेड मीन्स कि विदाउट ऑयल मखाना या भुने हुए चने चाय के साथ या किसी भी ड्रिंक के साथ, लाइट किसी भी, आप कोई भी हल्का फुल्का लाइट ड्रिंक ले सकते हैं, कोई हर्बल टी ले सकते हैं, या आप बटर मिल्क तो नहीं, लेकिन हाँ आप अगर चाय ले रहे हैं या बटर या कोई भी एनर्जेटिक ड्रिंक ले रहे हैं, तो आप लिटिल बिट 75 ml या 50 ml आप हल्का ले सकते हैं। साथ में आपने रोस्टेड वेजिटेबल सैंडविच बनवा लिया, या कभी आपने रोस्टेड मखाने ले लिए, या रस ले लिया, या 1 पीस ऑफ ढोकला ले लिया। बट हेल्दी चीज़ों की तरफ चाहिए, अनहेल्दी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखिए। अनहेल्दी चीज़ क्या होती है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। हमारा डिनर कैसा होना चाहिए या डिनर का टाइमिंग क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिनर हमारा टिल 7:30 वाइंड अप हो जाना चाहिए। क्यों? लेट नाइट डिनर स्टमक को हैवी करता है, नींद नहीं आती, डाइजेस्ट नहीं होता और वो फैट में कन्वर्ट होता है। सो यू शुड वाइंड अप योर डिनर एट 7:30। उसमें आपको रात में कार्ब्स को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड। आपको कार्ब्स नाइट में अवॉइड करना चाहिए। रात में आपको अगर आप डिनर ले रहे हैं, प्रोटीन दाल हो गया, हल्का आपने कुछ ओट्स, वेजिटेबल ओट्स ले लिया, कॉर्नफ्लेक्स ले लिए, या फिर आपने लॉट्स ऑफ लिक्विड वेजिटेबल्स ले ली, लौकी, तोरई, टिंडा या मल्टीग्रेन
दलिया बनवा लिया, मल्टीग्रेन ओट्स आते हैं, या फ्रूट सैलड ले लिया। रात का खाना आपको हल्का रखना चाहिए एज़ कम्पेयर लंच और एज़ कम्पेयर ब्रेकफास्ट। सबसे ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट देन लंच एंड लाइट डिनर, बिकॉज आप रात को प्रोटीन बहुत अच्छे अमाउंट में ले सकते हैं। आप अपनी डाइट में नाइट में आप एग्स ऐड कर सकते हैं, पनीर ऐड कर सकते हैं, दाल ले सकते हैं, बट वॉश्ड दालें, नॉट उड़द राजमा छोले, बिकॉज दीज आर हाईली स्टार्ची स्प्राउट। ओके, सो आपको वॉश्ड दालें, मूंग की दाल आपने पतली बहुत अच्छे अमाउंट में ले ली, आपने वेजिटेबल चॉपर ले लिया, आपने बॉइल्ड एग ले लिया। अगर आप बॉइल्ड एग नहीं लेते हैं तो आप न्यूट्रेला ले सकते हैं, जिसमें कि आपने सुबह सोक्ड वाटर में भिगो के रख दी, देन आपने शाम को उसको हल्का सा फ्राई किया प्याज टमाटर के साथ, आपने एक बाउल वो लिया। प्रोटीन का बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर 60 kg वेट, सो यू हैव टू टेक 60 ग्राम प्रोटीन पर डे। सो हमारा बताने का एजेंडा ये है कि एज अ डाइटिशियन आई नो कि व्हाट इज़ एक्यूरेट अमाउंट कार्ब्स, प्रोटीन, फैट। सो आई वांट टू अवेयर यू कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अमाउंट किसका हमारी डाइट में कितना है और किसका क्या रोल है। वाटर इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ डेवलप आवर इम्यून system. A balanced diet, well-balanced diet and nutrition is essential for a healthy mind and body. Per day water का exchange 13 to 14 glasses per day होना चाहिए। So I hope मेरे आज के सेशन में एजेंडा डाइटरी फूड हैबिट को बताने से था। आप डाइटरी फूड हैबिट्स हमारी ऐसी होनी चाहिए जो सुबह से लेके रात तक हमें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। अगर हम अपना लाइफ स्टाइल इस टाइप से चेंज करते हैं तो आपकी बॉडी, फिजिक, मेंटल, माइंड, आपका ग्रोथ, आपकी स्किन ग्लोइंग, आपके हर एक चीज़ में आपको हेल्प करेगा आपका चेंज लाइफ स्टाइल।